Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to series of lecture of structural dynamics. I think we took a very long break, about 2 weeks, and the last lecture we had was before Eid. And last Friday I could not spare some time to prepare the lecture of structural dynamics. In today's lecture, inshallah, we'll be discussing the general dynamics loading. So far we studied the response of single degree of freedom system with harmonic loading. That's what we have studied so far in all the lectures that we had before. Through this type of loading is important, but real structure are often subjected to load that are not harmonic, as we have studied this before as well when we were discussing the dynamic environment, that the type of loading varies a lot. And the easiest type of loading we discussed was the harmonic loading, and then we discussed the harmonic loading to the damped and undamped structure, and then gradually we started discussing or including the difficult or the real sort of loading in our structure, in our discussions. So normally you will see the real structure are often subjected to load that are not harmonic. So normally the loads are non-harmonic loads. So sometimes they are periodic, and sometimes they're not periodic even, and they are some different sort of loading. So in next few lecture, inshallah, we shall study the response of a single degree of freedom system to general type of force. So type of force we will see, then we will try to describe that particular force mathematically, and then we'll look for a solution of that force. So you'll in this lecture, and then inshallah in the next part, and in the third part, inshallah, you will see that the type of loading would be entirely different loading that we have not even encountered and that we have not even seen in our lecture before. So what we shall, inshallah, will be studying all those responses, but we will be studying those responses to the single degree of freedom system, and normally we will be studying for the undamped structure initially, and then we'll extend that to the damped structure as well. So we shall see that the response can be obtained in terms of an integral. That's what we will notice, that there would be an integral. For that, some simple loading function can be evaluated analytically. What would happen, we'll try to draw that force graphically, and then we'll try to define that force mathematically, and then we'll look for a solution of that. And when we'll see the solution, there would be an integral sort of thing, and that particular integral would be a Duhamel's integral. So for the general case, however, it will be necessary to resort to a numerical integration procedure. There is one that's what I have discussed, that there is an integration procedure, and then there is a numerical integration procedure as well. So we will be studying, inshallah, the easiest pass first. That would be the integration part, and then we'll see the numerical integration method as well, a little bit, and not very much in detail. So the thing that in this lecture, inshallah, we'll be discussing with the Duhamel's integral. So what I think you must have understood by now, that we'll try to define the type of force, and that type of force will not be a harmonic force, that type of force will not be a periodic force, that type of force would be some sort of a new sort of force, and we'll try to look that force graphically, and then inshallah we will try to describe that force mathematically, and then we'll see that whether we can solve that mathematical force through some method, and those method can be integration method. On one of that integration method is the Duhamel's integration, and the other method are the numerical method as well. So in today's lecture, we will be concentrating more on the Duhamel's integral, and then we will see the application of this Duhamel's integral on different types of loading. I have included about 2 or 3 types of loading, I think, in our discussion today's lecture, and then we will see the other type of forces as well in the next lecture. So in today's lecture, we'll see the Duhamel's integral. We'll try to discuss this Duhamel's integration, and we'll try to understand this Duhamel's integration. So we are discussing the Duhamel's integration for the undamped system, and then at the end of the lecture, inshallah, we'll include the damping as well. So to understand the Duhamel's integral, we need to understand the impulsive loading. So what is an impulsive loading? An impulsive loading is a load. It's a type of load which is applied during a short duration of time. So normally you have seen that we have studied the harmonic loading, and in that harmonic loading, the load was applied for a considerably longer period of time, and that time was not finite. I mean, that was continued
to a certain extent during that instant we considered that particular force. But if a force acts for a very short period of time and that short period of time tends to zero, then that sort of force would be known as an impulsive loading. So impulsive loading is a load which is applied during a short duration of time. And this duration of time is short, in even very short. And the shortest, I mean, in the case where this differential time would tends to zero, it is for that short instant of time. The corresponding impulse of this type of load is defined as the product of force and the time of duration. So that force, like for this example, you can see that this is the time and this is the type force P, and there was no force until this time tau. And from time tau to time epsilon, there was a very infinitesimal time period, and that time period there was a force, and intensity of that force was 1 upon epsilon. The total intensity is 1 upon epsilon, and this particular load is a unit load, and we call it the unit impulse. So a very large force that acts for a very short time. A very large force, this force is a very large force, but this is a very short time, but with a time integral that is finite, is called an impulsive force. So we need to understand what exactly the impulsive force is. This is sort of, in reality, you might not see this force, but we'll try to define this force and we'll try to see that if a force, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि इकाई का कायदा, if for a very short period of time के लिए if we can define a force mathematically and graphically, and then we can extend that graphical and mathematical force to a slightly longer period of time. For example, for a bomb blast, for a propeller load, even for a sinusoidal load, even for a periodic load. So if we can find out the solution of a unit impulse, then we can integrate that unit impulse for a longer period of time, and then that integration would give us the solution of the entire force. So a very large force that acts for a very short time but with a time integral that is finite is called an impulsive load. So I hope that you have understood what impulsive force is right now, and आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि impulsive force को why we are considering this impulsive force. So we are considering this impulsive force, then we will extend this study of this impulsive force to our own forces of interest, like triangular load, like half triangle, like half pulses, and you will see that the application of this impulsive load is very broad, and you will find a very useful information from the understanding of this Duhamel's integration. So impulsive force is a force which acts for a very short period of time, and the intensity of the force can be very large as compared to the duration of the time. The duration of time would be very finite, would be very short time, and the intensity of the force would be much greater than the duration of the force. Okay, so that is the same force. So shown in this figure 1 is the force Pt. The force Pt is now defined as 1 upon epsilon. The unit upon epsilon. Epsilon is the duration of the time for which this force acts, with the time duration epsilon starting at the time instant t is equal to tau. So this is t. So at different time interval, at this particular time instant where the force started to increase for a very short period of time is tau. And this force acted on that particular structure and whatever you are considering for a very short period of time. That short period of time we are saying that period to be epsilon. And the intensity of that force would be 1 upon epsilon. So as epsilon approaches 0, the force becomes infinite. The shorter you will be, you will consider the force will become infinite. However, the magnitude of the impulse defined by the time integral of Pt, this is the magnitude of the impulse Pt, remains equal to unity. The intensity would remain equal to 1. So that's what we are considering. We are trying to find the solution for a unit force, and then we'll extend that solution of unit force for a, जैसे आप कहते हैं कि अगर आपको एक पेंसिल की कीमत पता चल जाती है तो आप 20 पेंसिलों की कीमत निकाल सकते हैं. अगर आपको एक किसी प्रोडक्ट की कीमत पता चलती है, then you can find out the price of the many product. So in the same way, अगर आपको एक unit force, unit impulse की आपको solution, if by somehow you can find out the solution of that unit impulse, then you can extend that solution to किसी भी type of loading के लिए you can extend that solution. So such a force in the limiting case where epsilon approaches to 0 is called the unit impulse. ऐसी force जो कि जब टाइम आपका 0 की तरफ जा रहा हो और उसकी इंटेंसिटी यूनिट हो, उस फोर्स की इंटेंसिटी, तो फिर हम उसको कहेंगे यूनिट इम्पल्स.
सो इम्पल्सिव लोडिंग तो पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इम्पल्सिव लोडिंग। इम्पल्सिव लोडिंग ये है जो कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए कर रही है, शॉर्ट पीरियड है और उसकी इंटेंसिटी कुछ भी है। अगर आप उस शॉर्ट पीरियड को टेंड्स टू 0 कर देते हैं और उसकी इंटेंसिटी को यू कंसीडर दैट टू बी 1, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट इम्पल्स। So impulsive loading, and then within that impulsive loading we are trying to define the unit impulse. ठीक है, तो द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी माइनस टॉ एक फंक्शन है जिसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, या मैथमेटिकली जाके गूगल कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज। सो वी आर डिफाइनिंग दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टू बी टी माइनस टा टाइम। ये अब टाइम इंस्टेंट क्या है कि टी में से टा निकाल लें, तो टोटल टी में से जब टा निकालेंगे तो बहुत एप्सिलॉन आपके पास छोटा, ये देखेंगे ना, ये टी है, ये टी है। टी में से जब आप अगर इस टाइम इंस्टेंट टी में से टा निकालेंगे तो आपको ये छोटी सी इंपल्स मिल जाएगी इस जगह के ऊपर। होपफुली आपकी बात समझ में आ रही है। मैं यहाँ इसको ड्रॉ आपको करके बता देता हूँ कि टी माइनस टा क्या है। तो ये जो पूरी आपके पास चली जा रही है, ये पूरी की पूरी, ये सारा यहाँ से अगर मैं इसको लाइन लगा के ये कर दूँ तो ये सारा के सारा क्या है, ये टी है, ये टाइम इंस्टेंट टी जो कि हम यहाँ भी दिखा रहे हैं ना इसको। ये टी में से अब इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर लेट सपोज मैं इस सेंटर में हूँ, इस इम्पल्स के सेंटर में हूँ, तो यहाँ भी एक टी होगा। ठीक है, ये जो जगह है इस जगह को हम ले रहे हैं कि यहाँ टाइम इंस्टेंट टा है। तो इस टी में से अगर मैं टा निकालता हूँ तो मेरे पास ये वाली चीज़ बच जाती है, ये वाली। ये टोटल था टी, किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर टी था, टी में से टा टाइम को हमने डिफाइन किया हुआ है कि दिस मच टाइम इज द टा। सो अगर मैं टी में से इस टा को माइनस करता हूं, इसका मतलब ये कि मैं इस जगह के ऊपर खड़ा हूं। अब अगर टी, दिस इज टी माइनस टा, तो डायराक डेल्टा फंक्शन जो है वो ये है। ये मैथमेटिकली अगर आप जाएंगे ज़रा, यहाँ हम उस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस फंक्शन, इस जो इम्पल्स है इसको हम डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी माइनस टा के टाइम पे मैथमेटिकली डिफाइंस अ यूनिट इम्पल्स। और ये जो टी माइनस टा है, ये अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इस सूरत में जब एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, जब एप्सिलॉन इतना मिनिमम हो गया है कि वो टेंड्स टू 0 हो रहा है, तब हम इसको यूनिट ले रहे हैं, इम्पल्सिव लोडिंग ले रहे हैं। और अगर उसकी इंटेंसिटी यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग दैट टू बी अ यूनिट इम्पल्स। ठीक है जी। तो अब ये इसका सोल्यूशन है। ये अगर आप इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ है, अगर आपके पास ये इस इम्पल्स को अगर आप इस जगह के ऊपर ले लेते यहाँ, ठीक है, तो ये लोडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो सकती थी, यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को कंसीडर एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आऊँ तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकती थी। तो अब यहाँ हम करने क्या जा रहे होंगे, हम इस जगह के ऊपर अगर टाइम को ले रहे हैं, अगर हम आगे फोर्स को देखेंगे कि फोर्सिंग फंक्शन ये तो रिस्पॉन्स है इसका, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स से मुराद समझते नहीं, जो उसका रिजल्ट आ रहा है कि अगर ये एक यूनिट इम्पल्स आप जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर किस तरह वाइब्रेट करेगा। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो अनडैम्ड सिस्टम है और ये डैम्ड सिस्टम है, और आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है, आप जानते हैं आपकी डैम्ड सिस्टम वुड ग्रेजुअली डीके हो जाएगी उसके अंदर डैम्पिंग की वजह से वाइब्रेशन, और जो अनडैम्ड सिस्टम होगा वो फिर कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसका रिस्पॉन्स है। इसी रिस्पॉन्स को अब हमने ग्राफिकली तो दिखा दिया, लेकिन हमने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को विल हैव टू फाइंड दैट कि किस तरीके से हम इसका मैथमेटिकल फंक्शन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि इफ अ फोर्स P एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, फोर्स P एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इस तरीके से हमको इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं, इस तरीके से इन टर्म ऑफ मोमेंटम को भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया जा सकता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो यू कैन ये ऐसी जो मास टाइम एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इसको आप इस टर्म में भी आप कह सकते हैं। तो ये अगर आपने यकीनन इसको एफएससी लेवल के ऊपर पढ़ लिया होगा, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम एक्सेलरेशन। एंड आपको पता है कि अभी तक जो हम एक्सेलरेशन को पढ़ते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं कि ये एक्सेलरेशन इज दी, ये ए डबल डॉट को भी हम इस यूँ भी पढ़ते हैं, यू डबल डॉट के टर्म में लिखते हैं। और यू डबल डॉट किया है कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू एम टाइम डेरिवेटिव ऑफ टी के साथ हम ले लेते हैं वेलोसिटी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इनटू इज इनफैक्ट एक्सेलरेशन, और उसको जब हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ मिल जाता है। तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है कि
change mass time velocity is the momentum. This is what momentum is. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा कि m2 v2 माइनस m1 v1, और मास चूँकि अब हमारे केस में मास कांस्टेंट है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1। तो ये जो चीज़ आ जाएगी वो ये आपके पास चीज़ आ जाती है। तो कैसे यहाँ समझाने का मेरा मकसद ये है कि ये इसको अगर आप इस टर्म में डिफाइन करते हैं कि मास टाइम एक्सेलरेशन की टर्म में, या फिर आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की टर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं इस स्टेटमेंट को, ताकि इस एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी समझ में आ जाए कि इफ अ फोर्स P acts on a body of mass m, the rate of change of momentum of the body is equal to the applied force। तो अब ये क्या होता है, दैट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये मास टाइम वेलोसिटी है। आप जानते हैं कि ये जो यू के ऊपर एक डॉट लगाते हैं तो दैट शोज द वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास टाइम वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये दिस इज ये d/dt इज डिफाइंस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम इसमें कह रहे हैं कि मास इज कांस्टेंट। ठीक है, फॉर कांस्टेंट मास दिस इक्वेशन बिकम्स दिस कि P इज इक्वल टू एम यू डबल डॉट, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया। तो ये चीज़ वही मास टाइम एक्सेलरेशन बन जाती है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम इन दोनों साइड को टी के साथ रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो आपको ये चीज़ मिल जाती है कि P टाइम dt t2 माइनस t1, मास यहाँ कांस्टेंट था तो जो एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1, और ये आपके पास इस टर्म में आ जाता है m डेल्टा u डॉट। डेल्टा u डॉट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। The integral on the left hand side of this equation is the magnitude of the impulse. This is the magnitude of the impulse. P time dt. dt वो एप्सिलॉन की टर्म में आ गया, P अब आपके पास यूनिट है। ठीक है, तो आप इस इम्पल्स को, अब आप अगर यूनिट इम्पल्स लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यूनिट इम्पल्स की सूरत में ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिफाइन है, लेट सपोज मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि यूनिट इम्पल्स को अगर मेरे पास जो फोर्स थी वो फोर्स यूँ थी, लेट सपोज ये जो हमने हार्मोनिक ली हुई थी, तो अब इस इम्पल्स क्या है, ये एक इम्पल्स यहाँ भी आ सकता है, इम्पल्स यहाँ भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं छोटे छोटे वो इस पूरी फोर्सिंग, ये डिफाइंड फोर्सिंग फंक्शन है। ठीक है, ये PT आपको डिफाइन कर रहा है और दिस इज टाइम t। तो अब PT को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दूँ तो एक छोटा टुकड़ा जो है वो इम्पल्स है, और अगर उस एक छोटे टुकड़े की आप जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट लेते हैं, देन दैट वुड बी अ यूनिट इम्पल्स। ओके, सो द इंटीग्रल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। दिस इज व्हाट इम्पल्स इज, P टाइम dt किसी डिफरेंशियल टाइम के लिए, क्योंकि ये अगर आप इस टाइम में से एक छोटा सा डिफरेंशियल टाइम या dt लेते हैं तो वो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज द मोमेंटम। द प्रोडक्ट, ये मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज मोमेंटम। अब ये इक्वेशन 1 बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देती है, जो कि आगे हम समझाने के चाह रहे हैं। दस इक्वेशन 1 स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, क्या बता रही है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स, दिस इज magnitude of the impulse is equal to this thing, and what is this thing? This is the change of momentum। अब इस यूजफुल इंफॉर्मेशन किस कदर होगी और इससे हमें क्या फायदे मिलेंगे, ये आप आगे देखिए होता है क्या। सो द इम्पल्स ऑफ द फोर्स F टाइम टा, जो फोर्सिंग फंक्शन है, इसको यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म एज वेल, PT। ठीक है, यहाँ हम टा टाइम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम उस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं आफ्टर टाइम टॉ। जिस PT को हम F टॉ इसलिए कह रहे हैं, टॉ इसलिए कह रहे हैं कि टाइम टॉ के बाद ये फोर्सिंग फंक्शन है। डिपिक्टेड इन फिगर एट टाइम टॉ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल d टॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। ये वो देखिए जो चीज़ मैंने आपको वहाँ हार्मोनिक फंक्शन में लेकर के बताई थी। तो अगर ये आपने एक फोर्सिंग फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन हुआ है, और अगर आप उसमें से इस t प्लस डीटा एक छोटी सी डिफरेंशियल लेंथ के लिए आप ये इसको डिफाइन करते हैं तो ये डीटा है। ठीक है, तो अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो F टा मल्टीप्लाइड बाई डीटा, सो दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स किसके बराबर होगा? चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। यहाँ ये बताने की, तो ये किसी भी फोर्सिंग फंक्शन को इसके अंदर अगर आप जो है जब आप देखेंगे इसको, जब इस पूरे इस टाइम से इस इधर से लेकर के यहाँ तक के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तमाम का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डोहेमल्स इंटीग्रल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक छोटी सी इम्पल्सिव लोडिंग के लिए हम एक सोल्यूशन ले सकते हैं, एंड देन इफ़ आई इंटीग्रेट दैट
impulsive loading, solution of that impulsive loading for the whole ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स, जितने ड्यूरेशन के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, देन आई कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फोर्स। बी अगर वो फोर्स किसी भी टाइप की फोर्स हो सकती है ना, अभी आप देखेंगे कि आगे चल के आपको इस टाइप की फोर्स को भी हम डिफाइन कर रहे होंगे, आगे चल के आप देखेंगे कि मैं इस टाइप की फोर्स को भी डिफाइन कर रहा हूँ, आगे चल के आपको देखेंगे कि मैं इस टाइप की फोर्स को भी सोल्यूशन लेना होगा, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा होगा उसके अंदर फिर हम ये इस टाइप की लोडिंग को भी डिफाइन कर रहे होंगे, हम इस टाइप की लोडिंग को भी डिफाइन कर रहे होंगे। तो फिर ये जो टाइप्स ऑफ लोडिंग है आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर ये सोल्यूशन जो है आपका वैलिड हो सकता है। तो हमने फिर करना क्या होगा, हमने इस टाइम को समझना, इसलिए मैं ये बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डुहेम्बल्स इंटीग्रल को समझ लेना हमारे लिए बड़ा यूज़फुल हो सकता है। अगर हम किसी भी तरीके से हम इस डुहेम्बल्स इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं, देन वी कैन अप्लाई द सोल्यूशन ऑफ दिस डुहेम्बल्स इंटीग्रेशन टू किसी भी मैथमेटिकल फोर्स के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो द इम्पल्सिव फोर्स, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स, ये इम्पल्स ऑफ द फोर्स है, ठीक है, ये जो एफ्टा है, ये जो इंटेंसिटी इज एफ्टा, और जो इसकी थिकनेस है ये डीटा है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू द एरिया, एंड द एरिया विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल इंटेंसिटी ऑफ दैट इम्पल्सिव लोड at time ta during the time interval d ta is represented by the shaded area and is equal to f ta d ta। देखिए ना, ये जो मैंने आपको बताया था कि that is in fact the area, f ta is the intensity। तो ये अगर आप इसका ये ले लेते हैं, ये समझ लीजिए, ये जो चीज़ है इसकी ये क्या है, ये d ta है, और ये जो चीज़ है ये चीज़ कितनी है, ये f टाइम ta है। तो अगर आपने इसकी इंटेंसिटी लेनी है इम्पल्सिव लोडिंग की, तो दैट वुड बी इक्वल टू एफ टा मल्टीप्लाइड बाय डी टा। तो दैट वुड बी दी मैग्नीट्यूड एंड दैट वुड बी इक्वल टू दिस थिंग। तो होप यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आ गई, देन वी कैन मूव अहेड। सो दिस इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m प्रोड्यूसेस द चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि ये इम्पल्स क्या कर रहा था कि उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहा था इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल था ना। तो अब ये मास चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो वो फिर क्या करेगा, दैट इट विल प्रोड्यूस अ चेंज इन वेलोसिटी दैट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब भी मैंने लास्ट स्लाइड में या उससे पिछली स्लाइड में डिफाइन किया, उसके ज़रिए से हम चेंज ऑफ वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वही मास dv अपॉन dt चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू द इम्पल्स। ये वहाँ मैंने उस टर्म में भी आपको डिफाइन किया और यहाँ इस टर्म में भी डिफाइन किया था। 2 स्लाइड्स पीछे आप जाके देखेंगे तो हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स। सो अगर इसको रीअरेंजमेंट करते हैं तो दैट विल यील्ड दिस थिंग। dv को आपने यहीं जोड़ा, मास को नीचे के लेकर आ गए और d2 को यहाँ वो कर दिया। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपने dv को यहीं छोड़ रहे हैं, मास dt एंड बटे के नीचे है, तो dt यहाँ ऊपर चला जाएगा और मास से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट द सेम दिस इक्वेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सिंपल रीअरेंजमेंट है इधर उधर करके। वेयर एफ टा डी टा इज द इम्पल्स, ये हमने पहले भी डिफाइन किया है कि एफ टा डी टा इज द इम्पल्स एंड डी वी इज द इंक्रीमेंटल वेलोसिटी। अब ये जो ये यूनिट इम्पल्स लगा है या इम्पल्सिव लोड लगा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइएगा, मेरे मुंह से बात अगर यूनिट इम्पल्स निकल जाएगा। तो कहीं अगर आप उस इम्पल्सिव लोडिंग की इंटेंसिटी को यूनिट ले रहे हैं तो देन दैट वुड बी अ यूनिट इम्पल्स। अगर आप उसकी इंटेंसिटी को एफ टा ले रहे हैं तो देन दैट इज नॉट अ यूनिट इम्पल्स, दैट इज इम्पल्सिव लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्पल्स की। F ta d ta is the impulse and dv is the incremental. The incremental velocity may be considered to be an initial velocity of the mass at time ta. अब ये जो incremental velocity होगी ये उसके अंदर एक free vibration sort of है। free vibration आप पहले पता है ना कि free vibration is caused either by the initial displacement or by the initial velocity। तो अब ये जो velocity के अंदर चेंज आ रहा है वो उस सिस्टम के अंदर कोई initial velocity cause कर देगा, and the system will start to vibrate। ओके, तो हम अब सोल्यूशन को अब आपकी यहाँ आपके जो क्लिक कर देना चाहिए, नॉक कर देना चाहिए कि हम उस सोल्यूशन को अपने उस सोल्यूशन के साथ कहीं लिंक कर सकते हैं कि जहाँ अगर आपने फ्री वाइब्रेशन के, हमने आपको याद होगा सोल्यूशन को, तो हमने कहा था कि या तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी से हो रहा है। अब अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ये इम्पल्सिव लोडिंग काज कर रही है तो इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से एक फ्री वाइब्रेशन उसके अंदर काज हो जाएगी, एंड दैट वुड बी द सोल्यूशन टू द फ्री वाइब्रेशन, जो कि हम आगे की तरफ अभी उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जा रहे हैं। So let us now consider this impulsive acting on a structure represented by the undamped oscillator। अब ये जो इम्पल्स लगा है f टाइम डीटा, ये इस इम्पल्स को हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा है और वो स्ट्रक्चर जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है।
So at time tau, the oscillator will experience a change in velocity. अभी हमने डिस्कस किया कि जिस टाइम इंस्टेंट के ऊपर लगा रहे हैं तो ये जो सिस्टम था आपके पास, ये जो ऑसिलेटर था, दैट विल एक्सपीरियंस अ चेंज इन वेलोसिटी गिवन बाय इक्वेशन 2, जो कि हमने वहाँ इक्वेशन 2 में आपको पिछले इसमें बताई. दिस चेंज इन वेलोसिटी इज देन इंट्रोड्यूस इन दिस इक्वेशन. ये अगर आपको याद होगा कि ये वो सोल्यूशन था जो कि फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस का वो सोल्यूशन था, जिसमें हम कह रहे थे कि दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. सो ये जो इम्पल्सिव लोडिंग वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो दैट इंक्रीमेंटल वेलोसिटी वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस इक्वेशन टू गेट दिस सोल्यूशन. ओके, सो दिस चेंज इन वेलोसिटी इज देन इंट्रोड्यूस इन दिस इक्वेशन. ठीक है. सो एज द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, जो भी चेंज इन वेलोसिटी आई है वो हम इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर इसमें डाल देंगे, टुगेदर विद द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एज जीरो, एंड वी विल कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट एट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हम दे रहे एट टाइम टा. सो प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट यू डी टी एट एनी लेटर टाइम वुड बी दिस थिंग. तो इसका जो सोल्यूशन था वो फिर हमने ये दे दिया था. ठीक है, कि साइन ओमेगा टी माइनस टा. इस टर्म में भी हम इसको लिखा था, अगर आप जाके वो पहले वाले लेक्चर देखेंगे. तो ये अगर आप सारी की सारी चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़, ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी ये चीज़ है. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई ना, तो जीरो होने से ये आपके पास सारी चीज़ जीरो हो गई. इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दी थी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स ने दी थी. ये एम आपके पास पहले से मौजूद था. ओके, तो जब इस चीज़ को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ओमेगा बाहर आता है, और ये फिर इस तरीके से ओमेगा यहाँ आ गया. तो ये जो अब सारी की सारी चीज़ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है. वी नॉट अपॉन ओमेगा है ना, तो वी नॉट वुड बी दी प्रोडक्ट जिस चीज़ के बराबर आ जाएगी और ये चीज़ के बराबर आएगी. तो ये आपके पास यही की इक्वेशन है. इस इक्वेशन के अंदर आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डाली है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स. सो द लोडिंग फंक्शन में देन बी रिगार्डेड एज सीरीज ऑफ शॉर्ट इम्पल्सेस. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अब इस लोडिंग फंक्शन को हम सीरीज ऑफ शॉर्ट इम्पल्सेस अगर ले लें एट सक्सेसिव टाइम इंटरवल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक सीरीज ऑफ जो है वो इम्पल्सेस होंगी. ठीक है, ईच प्रोड्यूसिंग इट्स ओन डिफरेंशियल रिस्पॉन्स एट टाइम टी ऑफ द फॉर्म गिवन बाय द इक्वेशन 2. जो इक्वेशन 2 थी, जो उसको हमने फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस था, वो दे रही होगी. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर के ये इन्फिनिट नंबर ऑफ इम्पल्सिव लोडिंग के रिस्पॉन्सेज अगर आप लेते चले जाएंगे, तो 1 जो इनिशियल वेलोसिटी दे रहा होगा वो 2 में कास कर रहा होगा, 2 जो इनिशियल वेलोसिटी दे रहा होगा वो 3 को इंसाइड कर रहा होगा. तो इस तरीके से एक फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स इसका आता रहेगा. और फिर ये अगर आप देखेंगे तो हर टाइम हर इम्पल्सिव लोडिंग की एक अलग वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है इम्पल्सिव लोडिंग की, तो फिर जो इंक्रीमेंटल वेलोसिटी होगी दैट वुड आल्सो बी डिफरेंट. ठीक है जी. तो ये एक सीरीज ऑफ इम्पल्सिव लोडिंग आ रही है. जो यहाँ आपको अब चीज़ को कनेक्शन जो आपको कर लेना चाहिए वो ये है कि एक इम्पल्सिव लोडिंग का अगर हम उसको सक्सेसिव इम्पल्सिव के साथ ले लें, तो फिर हम किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन जो फोर्स को डिफाइन कर रहा है उसके लिए हम सोल्यूशन को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप यूनिट पहले इम्पल्स के लिए ले रहे हैं तो वो ये है, सेकंड इम्पल्स के लिए जाते हैं तो वो ये है. ठीक है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मैं इन इम्पल्सेस की बात कर रहा हूँ. ये पहला इम्पल्स, ये दूसरा इम्पल्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से इम्पल्सिव चलते चले जाएगा ना. यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी मैंने 3 डॉट लगा दिए कि ये इम्पल्सेस चलते चले जा रहे हैं. तो हर एक सिंगल इम्पल्स का जब आप रिस्पॉन्स देखते हैं तो दिस वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट यूनिट इम्पल्स, फर्स्ट इम्पल्स, एंड दैट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ द इम्पल्स नंबर 2, एंड दैट वुड बी द. इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो टाइम पे ये होगा, जो टोटल रिस्पांस आ जाएगा. तो फिर आप इन सबको सम कर दें, एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिशन कर देंगे, तो दैट विल यू विल गेट द टोटल रिस्पॉन्स. होपफुली ये बात समझ में आ रही है. तो जितना जितना इम्पल्सिव लोडिंग का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी करेगा, उतना ही ज़्यादा फिर उसका जो वो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स आएगा वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ये होपफुली आपकी बात समझ में आ रही है. नहीं आ रही है तो फिर आपको जाके वो मेरे इनिशियल लेक्चर जिसके अंदर हमने फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस को देखा था वो समझना होगा, और फिर जाके ये चीज़ समझनी होगी कि हर इम्पल्सिव लोडिंग एक इंक्रीमेंटल वेलोसिटी इंड्यूस करता है, एंड दैट इंक्रीमेंटल वेलोसिटी इज़ बेसिकली जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है एक फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस के लिए. तो फिर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी. तो अगर आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ ये रिस्पांस क्यों बढ़ा, यहाँ रिस्पांस क्यों छोटा है, तो अगर आप जाके इस चीज़ को फोर्स को यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि ये रिस्पांस कम, ये फिर कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, यहाँ
पीक पे पहुंचा, तो इस पीक पर इंक्रीमेंटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। और फिर इसके बाद ये चूँकि वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स कम होना शुरू हुआ है, इंक्रीमेंटल वेलोसिटी उससे कम होना शुरू होगी। जब इंक्रीमेंटल वेलोसिटी कम होना शुरू होगी तो रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके नतीजे में जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो फिर ये रिस्पॉन्स मिलता है जो आप ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, और ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो एट द एंड ऑफ दी वो आप जब देख चुके हो तो डू आस्क क्वेश्चन, ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ को जो है वो क्लियर हो। सॉरी, अच्छा जी। सो देयरफॉर we conclude that the total displacement at time t due to the continuous action of the force F ta is given by the summation or integral of the differential displacement u dut from the time t is equal to 0 to time t। तो अगर आपने टोटल लेना है तो हम ये कंक्लूड ये कर रहे हैं कि 0 टाइम से लेकर के जहाँ तक कि आपकी फोर्स लगी हुई है उस तमाम इम्पल्सिव लोडिंग के जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करना कहते हैं, समझते हैं ना, कि मुत्तहिद कर दें, एक जगह के ऊपर जमा कर दें, सम कर दें, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द टोटल रिस्पॉन्स, एंड दैट टोटल रिस्पॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। तो दिस इज द इंटीग्रल, ये वो रिस्पॉन्स था। ठीक है, ये एफ टाट जो है वो इम्पल्सिव लोडिंग है, जो बिल्कुल वही जो फंक्शन हमने वहाँ डिफाइन किया था उस फंक्शन का इंटीग्रेट कर दिया। इम्पल्सिव का जो हमने डिफाइन किया था इम्पल्स को, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम 0 टू टा, और जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट विल गिव यू द टोटल रिस्पॉन्स। अब अगर आपका चीज़ हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने डिस्कशन ऑफ डुहेमल्स इंटीग्रल से किया था। हमने कहा था कि हम एक इंटीग्रल डिफाइन करेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान कर देगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो हम आस्ता आस्ता उस इंटीग्रल की तरफ आ रहे हैं, और हम एक ऐसे इंटीग्रल की तरफ आएंगे जहाँ हम कहेंगे कि यस दिस इज़ आवर डिफरेंट डुहेमल्स इंटीग्रल। ठीक है, एंड वी आर कॉलिंग दिस इंटीग्रल टू बी इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इंटीग्रल इन दिस इक्वेशन इज़ नॉन एज द डुहेमल्स इंटीग्रल। ये वो हमारी मंजिल थी जिसकी हम जस्तजू में अभी 20-25 मिनट हमने लगाए कि ये वो डुहेमल्स इंटीग्रल है जिसके लिए हम जानना चाह रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसकी यूटिलिटी आपको बड़ी वाज़ेह हो गई, तो मैंने इसलिए पहले इसको नहीं डिफ़ाइन किया कि हमने किस तरीके से इम्पल्सिव लोडिंग को डिफ़ाइन कर लेने के बाद हम अपनी किसी भी मुश्किल से मुश्किल टाइप ऑफ लोडिंग का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये तो अभी आपने देखा कि कितनी एड़ी पेड़ी लोडिंग जा रही थी, हमने उसको सोल्यूशन निकाल दिया। तो इफ़ यू कैन डिफाइन, इसके अंदर जो की चीज़ है वो ये है कि अगर ये एफ टा जो है, ये फोर्सिंग फंक्शन जो है ना, इसको अगर आप अपने जो फोर्स टेढ़ी पेढ़ी फोर्स लग रही है, अगर आप उसको मैथमेटिकल ज़बान में लिख सकते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन थ्रू दिस डुहेमल्स इंटीग्रल, because you will have to define that teddy-peddy force into a mathematical language so that you can put that mathematical function into this Duhamel integral to find out the solution of the total response of the force. Okay. So equation 3 represents the total displacement produced by the exciting force F tau acting on an undamped oscillator. It includes both the steady state and the transient component of the motion corresponding to zero initial condition. हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन उसकी उससे पहले वाली कंडीशन जीरो है। ये डुहेमल्स इंटीग्रल है कि उसके अंदर वेलोसिटी डाल के इनिशियल वेलोसिटी के जरिए कर रहा है। तो इससे पहले वाले जो जीरो इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास जीरो है। ओके, टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप कह रहे हैं नहीं भाई सिस्टम में पहले से वाइब्रेशन थी और पहले सिस्टम एक वाइब्रेट कर रहा था और आपने आके उसमें पंगा लिया थ्रू इम्पल्सिव लोडिंग, तब फिर क्या होगा। टू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यू नॉट एंड द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट at time t is equal to 0, it is only necessary to add equation 3 the solution of equation A for the effect due to initial condition। जो हमने पहले सोल्यूशन किए थे उसके अंदर आप जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस के जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर प्लग इन कर देंगे। वो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दस द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री फ्री सिस्टम विद एन आर्बिट्रेरी लोड इज गिवन बाय दिस थिंग। तो इफ़ यू कैन सी, ये जो हम आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, ये इनिशियल वाइब्रेशन रिस्पांस है। यू नॉट इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वी नॉट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। सो अगर आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पहले से थी एंड यू हैव जस्ट टेकन अ पंगा बाय अप्लाइंग ए इम्पल्सिव लोड, ठीक है, जो कि सिस्टम पहले से वाइब्रेट कर रहा था, तो दैट वुड बी दी इनिशियल रिस्पांस जो पहले से वाइब्रेशन उसके अंदर थी। इन एडिशन टू योर, दिस इज़ द रिस्पांस ऑफ योर पंगा, जिसको इम्पल्सिव लोडिंग को मैं पंगा कह रहा हूँ, ये वो इम्पल्सिव लोडिंग का रिस्पांस है एंड दैट इज़ द रिस्पांस ऑफ द आपका जो इनिशियल जीरो वाइब्रेशन कंडीशन थी, जीरो टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो कंडीशन थी वो ये है। ठीक है, तो एक तो हमने बात ये की कि भाई इनिशियल कंडीशन जीरो हमने ले ली, हमने कहा कि नहीं भाई सिस्टम स्टैटिक हालत में था एंड वी जस्ट हमने उसके अंदर एक इम्पल्स लगा दिया।
ठीक है, एक तो ये था। एक ये कि ये लोड पहले से मूविंग कर रहा था स्ट्रक्चर, और ये इस मोमेंट में आके आपने इम्पल्स लगा दी, तो फिर क्या होगा कि इसकी वाइब्रेशन क्या होगी। तो इनिशियल जो वाइब्रेशन थी वो किस वजह से थी, वो इस इनिशियल कंडीशंस की वजह से थी, U नॉट और V नॉट की वजह से। इन एडिशन टू दैट व्हेन यू अप्लाइड दिस इम्पल्सिव लोडिंग, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन आई वो फिर ये वाली वाइब्रेशन आएगी जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। ओके, so application of equation 4 for simple forcing function for which it is simple to obtain the explicit integration of equation 4 will be presented ahead. So that's what मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एप्लीकेशन इक्वेशन नंबर 4 की हम देखेंगे आगे, मुख्तलिफ लोडिंग के लिए हम उसको एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन की कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आप उस जो भी ग्राफिकल फोर्स आपको नज़र आ रही है उस फोर्स को आप मैथमेटिक्स की टर्म में डिफ़ाइन कर सकें, देन यू कैन पुट दैट mathematical form of your forcing force into this Duhamel's integral, then you can find out the solution for zero initial condition, for not zero initial condition, for whatever condition you may have, you can find out the solution of that mathematical equation. So thus the total displacement of an डैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद एन आर्बिट्रेरी लोडिंग इज गिवन बाय। अभी तक हमने अनडैम्प के लिए कर रहे थे, तो अगर आपने डैम्प के लिए लेना है तो वही जो आपका डैम्प वाला रिस्पॉन्स है वो इसके अंदर डालते हैं, ये वो डैम्पिंग का रिस्पॉन्स है। नथिंग इज डिफिकल्ट। इम्प्लिसिट इन दिस रिजल्ट आर एट रेस्ट इनिशियल कंडीशन। इसके अंदर फिर हमने वो यही किया हुआ है, अगर आप देख रहे हैं कि इससे पहले वाला जो कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। वी आर कंसिडरिंग द डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, वी आर कंसिडरिंग द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टू बी जीरो। बट इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द इनिशियल कंडीशन को आप करना चाहते हैं तो वो भी फिर आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर ज़ाहिर इक्वेशन जो है, जो उसकी इक्वेशन थी वो इस इक्वेशन को ला के यहाँ करके पुट इन कर दें, जिस तरीके से आपने फ्री वाइब्रेशन के अंदर जो इनिशियल कंडीशन थी वो ला के पुट इन कर दी थी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास डैम स्ट्रक्चर के अंदर भी इनिशियल कंडीशन है तो वो भी आप ला के यहाँ पुट इन कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर, आपको ये इसका सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट। आई होप कि डुहेमेल्स इंटीग्रल समझ में आया आपको। डुहेमेल्स इंटीग्रल के समझ लेने के बाद हम इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया अपनी स्लाइड में, विल बी इसकी जो एप्लीकेशन है, विल बी स्टडिंग दोज एप्लीकेशन टू डिफरेंट, एटलीस्ट 2 मेरे ख्याल में मैंने इंक्लूड किए हैं। एंड देन इन द नेक्स्ट जो हमारा वीक का लेक्चर होगा उसके अंदर विल बी एक्सटेंडिंग दैट टू फर्दर लोडिंग कंडीशन एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।